کالا جادو، تحریر M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 13۔ میں تو خود اپنا ہی نہیں رہا، کسی اور کا کہاں ہو سکتا ہوں؟ مگر یہ شکنتا کون ہے؟ کیسی عجیب تھی، انداز ایسا تھا جیسے میری اس سے پہلے کی شناسائی رہی ہو۔ ناممکن تو نہیں تھا، پورے 5 مہینے کا معاملہ تھا۔ کس کس سے کیا رابطے کیے تھے کون جانتا تھا؟ چاند خان سے ملنے کے لیے دل بےتاب تھا، وہ مل جائیں تو کچھ ہمت بندھے، پتہ تو چلے کہ آخر ہوا کیا تھا۔ یہ تو آسانی سے سمجھا جا سکتا تھا کہ بھوریا چرن نے رتولی جانے کا راستہ روک دیا تھا، مگر کیسے؟ لباس تبدیل کر لیا تھا، جیب میں 40 روپے پڑے ہوئے تھے، نیچے اترا اور چل پڑا۔ چکتی پور سے زیادہ واقفیت تو نہیں تھی، مگر چاند خان کے محلے کا نام معلوم تھا، یہاں تانگے چلتے تھے۔ ایک تانگے والے نے مجھے وہاں اتار دیا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، اور اس وقت دل کو دھچکا لگا جب چاند خان کے مکان کے دروازے پر میں نے بڑا سا تالا لٹکا ہوا دیکھا۔ گمسم کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ ہو سکتا ہے سب لوگ کہیں گئے ہوئے ہوں۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک پرچون کی دکان تھی، ایک بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے بھی انہیں دور سے دیکھا تھا، اب ان کے قریب پہنچ کر میں نے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے جواب دیا۔ چچا، وہ سامنے والے مکان میں چاند خان رہتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ میں نے اشارہ کر کے کہا۔ کہیں گئے ہوئے ہیں کیا؟ چاند خان؟ وہ بزرگ حیرت سے بولے۔ جی چاند خان، کہیں گئے ہوئے ہیں کیا؟ وہ تو خلد آشیانی ہو گئے عزیزی، کیا کہیں باہر سے آئے ہو؟ بزرگ نے جواب دیا۔ کیا بتاؤں کیسا سماعت شکن دھماکہ ہوا تھا دل و دماغ میں۔ بزرگ کا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یا میں سمجھ کر نہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ ہمت کر کے دوبارہ کہا، کیا فرمایا آپ نے؟ ارے میاں بیٹھو، کہیں باہر سے آئے ہو؟ عزیز ہو ان کے؟ کیا ہوا انہیں؟ میں سمجھا نہیں۔ جنت نشین ہو گئے وہ تو، محلے کی عظمت تھے، بخدا پیشہ برا پایا تھا مگر محلے کی ناک تھے۔ درویش صفت، امیروں کی جیب تراش کر غریبوں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آدھی رات کو پہنچ جاؤ، چاند خان دامے درمی سخنے حاضر ہیں۔ انتقال ہو گیا ان کا؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بزرگ بہت بادونی معلوم ہوتے تھے۔ ہاں میاں، عرصہ ہوا، ریل کا حادثہ ہوا تھا نا، 70 افراد ہلاک ہوئے تھے اور بے شمار زخمی۔ ریل کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے وہ؟ ہاں عزیز، مگر کئی مہینے ہو گئے ہیں اس بات کو۔ تم کہیں ملک سے باہر گئے ہوئے تھے کیا؟ حادثہ کہاں ہوا تھا؟ رنجنا پور جنکشن سے کوئی 6 کوس پیچھے۔ سنا ہے قیامت خیز حادثہ تھا، ریل کے ڈبے ایک دوسرے پر برے طریقے سے چڑھ گئے تھے، ریل کے ڈبے تو چکنا چور ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آگے بزرگ نے کیا کچھ کہا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میرا دماغ ایک بار ماضی کے ان جھروکوں میں چلا گیا۔ وہی رات، وہی وقت، اس رات انہوں نے مجھے سلا دیا تھا اور میں سو گیا تھا۔ پھر سورج چمکا تھا، کچھ شور سا سنائی دیا تھا، اور اس کے بعد میرے 5 مہینے گم ہو گئے تھے۔ رما رانی نے مجھے شکتی پور میں ہی پایا تھا، اور یہی سب کچھ مجھے مالتی نے بھی بتایا۔ حالات اب سمجھ میں آ رہے تھے۔ اس حادثے نے میرا دماغ الٹ دیا ہوگا، اور چونکہ میرا کوئی وارث نہیں تھا، اس لیے نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرا ہوں گا، اور پھر رما رانی کے پاس جا پہنچا۔ محترم، خان صاحب کے کچھ اور ساتھی بھی تو یہاں رہتے تھے؟ میں نے آواز پر قابو پا کر کہا۔ ہاں میاں، بہت سے تھے، بہت سارے تھے، مگر جب بادشاہی نہ رہا، رعیت کیا رہتی؟ جس کا جدھر منہ سمایا اٹھا چلا گیا۔ اب تو تالا پڑا ہے کوئی 4 مہینے سے، بزرگ نے جواب دیا۔ میری آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ چاند خان صاحب کے بارے میں تو اندازہ ہو گیا تھا کہ بیچارے میری ہی وجہ سے موت کی نیند جا سوئے۔ ذلیل بھوریا چرن، اس تعویذ کی موجودگی میں خان صاحب کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، لیکن ریل کا حادثہ بلا وجہ تو نہیں ہوا ہوگا، ضرور اس میں اس کی بھی کوئی چال ہوگی۔ اوہ، کتنے معصوم لوگ مارے گئے میری وجہ سے، ان سب کا خون میری گردن پر تو ہے۔ اگر میں برے راستوں کا انتخاب نہ کرتا، اگر میں غلاظت کی تلاش میں قدم آگے نہ بڑھاتا، زندگی کو اس انداز میں گزارنے کی کوشش کرتا جیسے اس دنیا میں رہنے والے نیک نام لوگ گزارتے ہیں، تو یہ سب کچھ کیوں ہوتا؟ بہت بڑا گناہگار تھا میں، نہ جانے کس کس کا قاتل، اپنے ہاتھوں سے بھی میں نے قتل کیے تھے۔ وہ بیچارے جیل کے مظلوم سپاہی جو نہ صرف اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے تھے، پیٹ کے لیے، رزق کے لیے براہ راست میرے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ اوہ، میرے گناہوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی۔
और न जाने आगे क्या क्या कुछ करना पड़ेगा। खान साहब के किसी साथी का पता चल जाता तो कम से कम उससे रतौली के बारे में मालूमात ही हासिल कर लेता। उन साहब का नाम भी मुझे याद नहीं रहा था जिन साहब के पास खान साहब मुझे ले जा रहे थे। काश उस वक्त तवज्जो ही दे लेता, खान साहब से वो तमाम तफसीलात पूछ लेता तो कम से कम कोई सही अंदाजा ही हो जाता। यही गनीमत था कि रतौली का नाम मालूम है, वहां जाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन खान साहब के बगैर मैं क्या करूंगा, क्या कहूंगा किसी से, किसे तलाश करूंगा, क्या ये सब कुछ मुमकिन है? फिर अचानक दिल में एक ख्याल उभरा, खान साहब के घर का जायजा तो लिया जाए, हो सकता है वहां कोई ऐसी निशानदही हो जाए जिससे कुछ और तफसीलात मालूम हो। ये ख्याल अचानक ही दिल में पैदा हुआ था और इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया था कि दिल बेख्तियार खान साहब के मकान में दाखिल होने को चाहने लगा। वहां से हटा तो बुजुर्ग बोले, अरे नहीं नहीं मियाँ, ऐसे कैसे जा सकते हो, गन्ने का रस मंगवाता हूँ तुम्हारे लिए, 2 गिलास पियो, दिल ठंडा हो जाएगा। बड़ी बुरी खबर सुनाई है हमने तुम्हें, लेकिन ताज्जुब है 5 साढ़े 5 महीने हो गए इस वाक़े को, तो तुमने खबर ही ना ली। आखिर उनसे तुम्हारा क्या रिश्ता था? इन बातों ने बुजुर्ग को बड़ी मुश्किल से टाला। गन्ने की रस से माजरत की, झूठ बोलना पड़ा था इस सिलसिले में। उन्होंने चाय की पेशकश भी कर दी, लेकिन बस जान छुड़ाकर वहां से हट गया। दिल पर एक बार फिर गम के पहाड़ टूट पड़े थे। ये एहसास दिल से दूर नहीं हो रहा था कि चांद खान जैसा मुखलिस आदमी मेरी वजह से हलाकत का शिकार हुआ। मकान के करीब पहुंचा, सामने से गुजरा और बगली सिमटा गया। ये मकान दूसरे कई मकानात में घिरा हुआ था। अलबत्ता 6 मकान आगे जाकर रास्ता दूसरी तरफ मुड़ जाता था और यहाँ से खान साहब के मकान के अहाते के पिछले हिस्से में पहुंचा जा सकता था, जिसे मैंने देखा हुआ था। पतली सी गली थी और गैर आबाद रहती थी। फिर अहाते की दीवारें भी इतनी ऊंची तो नहीं थी कि उन्हें अबूर न किया जा सके। वैसे अहाते के पिछले हिस्से में एक छोटा दरवाजा भी था, लेकिन वो भी शायद अंदर ही से बंद था। मैंने इधर उधर देखा और ये जायजा लेने के बाद कि कोई मेरी जानिब मुतवज्जा नहीं है, अहाते की दीवार चढ़कर अंदर कूद गया। अंदर जगह जगह घास उगी हुई थी, जो कि काफी बड़ी बड़ी हो गई थी। रात की रानी के पौधे मुरझा गए थे। खान साहब को फुलवारी लगाने का शौक था। अकबी हिस्से में तरह तरह के गमले रखे हुए थे, सबके सब उसी तरह थे लेकिन मुरझाए हुए। मकान पर एक हौलनाक वीरानी सी बरस रही थी। उस वक्त जब मैं यहाँ था, खान साहब की मौजूदगी में ये मकान बड़ा पुररौनक रहता था। उनके शागिर्द हंसी मजाक करते रहते थे, कहकहों की आवाजें गूंजती रहती थीं। खान साहब का अंदाज उन सभी के लिए मुशफ़िक़ाना होता था। अब ये सारी चीजें मौजूद नहीं थी और एक अजीब सी वीरानी हर शय पर छाई हुई थी। मैं आगे बढ़ा और अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गया। मकान का सारा सामान गालिबन निकाल लिया गया था और अब वो खाली पड़ा था। खान साहब के कमरे में दाखिल हुआ। वसी व अरीस कमरा, कमरे में बिछा हुआ तख्त, एक जानिब रखी हुई मसहरी, ये चीजें मौजूद थीं। मसहरी पर अलबत्ता बिस्तर नहीं था। दीवारें नंगी कर दी गई थीं। मुझे खान साहब जगह जगह नजर आ रहे थे। हर सरसराहट पर यह एहसास होता था कि अब कोई आवाज देगा, लेकिन कुछ नहीं था। जो तसव्वुर लेकर मैं इस मकान में दाखिल हुआ था, यहाँ आते ही सब कुछ खत्म हो गया था। भला इस वीरान खंडर में अब मुझे क्या मिल सकेगा? किसी ने कुछ नहीं छोड़ा था। मैंने गर्दन झटकी। मायूसी ने दिल में घर कर लिया था। भूरियाचरण अभी तक मुझ पर हावी था। जो कुछ उसने कहा था वो कर दिखाया था। कमबख्त मुझे सुकून से जीने नहीं देगा। सुकून तो खैर क्या ही मिलता, जीना भी अब इतना मुश्किल हो गया था कि नाकाबिले बयान है। वो कमरा याद आया जिसमें खान साहब ने मुझे ठहराया था, और वो एक रात जब मैं एक अजीब हौलनाक हादसे का शिकार हुआ था। मेरे कदम उस कमरे की जानिब उठ गए और मैं उस कमरे के सामने पहुंच गया। वो बिल्कुल वैसा ही था। दरवाजे खिड़कियां गायब थीं। थोड़े थोड़े से लकड़ी के टुकड़े दीवारों में फंसे हुए। कैसी हौलनाक कहानी थी उस रात की। मैं धड़कते दिल के साथ कमरे में दाखिल हो गया। चंद कदम आगे बढ़ा ही था कि दफतन एक बार फिर मेरा दिल जोर से धड़का। दिल के किसी गोशे में यह तसव्वुर तक नहीं था कि भूरियाचरण यहाँ नजर आ जाएगा। वो अपने मनहूस वजूद के साथ दीवार से टेक लगाए, पांव फैलाए बैठा मुझे घूर रहा था। वही बड़ी बड़ी आंखें, वही हौलनाक चेहरा। मैं सख्ते के आलम में उसे देखता रह गया। एक लम्हे के लिए एहसास हुआ था कि कहीं ये मेरा वहम है, लेकिन नहीं। दूसरे ही लम्हे एक आवाज सुनाई दी, आजा 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 आजा, तेरा ही इंतजार कर रहे थे हम। कैसी गुजर रही है? मैं उसकी आवाज पहचानता था। सूरत तो मेरी निगाहों के सामने ही थी। कुछ देर तक मुंह से आवाज ना निकल सकी और फिर सारे बदन में चिंगारियां भर गईं। मैंने गुर्राए हुए लहजे में कहा,
وہ कमबख्त, अब ये तेरा मस्कन है बुढ़िया चरण। जवाब में उसने एक कहकहा लगाया और बोला, अरे बबुआ, थूकते भी नहीं है हम ऐसी जगहों पर। महल दो महल खड़े हो गए हैं हमारे लिए। यही तो कमी है तेरे अंदर बालक, तूने अब तक हमें पहचाना ही नहीं। अरे पापी, हम तो खुद चलकर तेरे पास नहीं गए थे, खुद ही तेरा मन हमसे मिलने को चाहा था। बात की थी तूने हमसे, हमने तो सारी सच्चाई से तुझसे कह दिया था कि तू हमारा काम कर दे, हम तो हार काम कर देंगे। मुसीबत लेकिन तुझ पर ही टूटी थी। कौन सा ऐसा धर्मात्मा है तू, थोड़ा सा काम कर देता हमारा, हमें वो शक्ति हासिल हो जाती जिसके लिए हम बरसों से कोशिश कर रहे हैं, और उसका थोड़ा सा हिस्सा तुझे भी मिल जाता। अगर वो थोड़ा सा हिस्सा भी उतना होता कि तेरे पुरखों ने भी ख्वाब में ना देखा होता। लेकिन तू भी अजीब है, सारी रस्सी जल गई पर बल हैं कि खुलते ही नहीं। अब भी समय है मूर्ख, अरे हमने तुझसे कह दिया ना कि अब भी समय है, मान ले हमारी बात। छोटा सा काम है और सिला जो मिलेगा तुझे, बस क्या कहें उसके बारे में, तुझे क्या कह सकते हैं तुझसे, समझदार है तू। मैंने एक गहरी सांस ली और गर्दन हिलाते हुए कहा, इतना खो चुका हूं बुढ़िया चरण कि अब खोने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस एक जज्बा है मेरे सीने में, वो ये कि वो गंदा काम हरगिज नहीं करूंगा जो तू चाहता है, और इस जज्बे को मैं नहीं खोऊंगा बुढ़िया चरण। ये जज्बा मेरा ईमान बन चुका है, ये जज्बा अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा, चाहे अब कितना ही नुकसान उठाना पड़े। तू ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है कुत्ते, मेरी जान ही ले सकता है ना मुझसे। मुझे इस जान से भला अब क्या दिलचस्पी हो सकती है जो बिल्कुल ही बेजान है। कोई मकसद नहीं है मेरी जिंदगी का, कुछ नहीं रहा मेरे पास। बुढ़िया चरण के हंसने की आवाज मेरे कानों में उभरी और फिर उसने कहा, अरे जान लेना होती तो कब की ले सकता था। बहुत मान है तुझे अपने ईमान पर, बहुत जज्बे हैं तेरे सीने में। अरे पगले, जान तो मैंने किसी की भी नहीं ली। तेरे माता पिता जीते हैं, तेरी बहन जिंदा है, तेरा भाई जिसे तूने समंदर पार भगा दिया वो भी जी रहा है, और तू भी तो जी ही रहा है रेल का हादसा होने के बाद। अरे खुद थोड़ी हुआ था, इंजन उतार फेंका था हमने पटरी से, पटरी ही तोड़ डाली थी। वो सूरमा जो तेरे साथ था बहुत बड़ा पहलवान बनता था, तावीज गले में डाले रखता था। ठीक है, हम उस तावीज की वजह से उसके पास नहीं जा सकते थे, मगर रेल के पास तो जा सकते थे। कहो कैसी रही? मैं ये सुनकर खूनी निगाहों से उसे देखने लगा। ये तय हो जाने के बाद कि रेल के हादसे में उसका हाथ था और उसमें 70 आदमी मारे गए थे सिर्फ मेरी वजह से, और लातादाद जख्मी हुए थे। अब मेरा जुनून उरूज पर पहुंच गया। मैंने दीवानगी के आलम में उस पर छलांग लगा दी। ये कुत्ता अगर मेरे हाथ आ जाए तो मैं अपने दांतों से इसका नरखरा उधेड़ डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा इसे, नहीं छोड़ूंगा। ये सोचते हुए मैंने एक खासी ऊंची छलांग लगाई थी और एक लम्हा गुजरने ही वाला था कि मैं उस पर जा पड़ता, लेकिन मेरे और उसके दरमियान न जाने क्या चीज हायल हो गई थी। न जाने वो क्या था। मैं खिला में मौल्लिक हो गया था। मैंने हाथ पांव मारे तो मेरे हाथ पांव किसी लैसदार चीज में जकड़ते चले गए। तभी उस लैसदार चीज को देखा जो कि एक मोटी सी रस्सी की मानिंद बेजान जाला था। पकड़ी का जाल, लैसदार बदन से चिपक जाने वाला, इतना मजबूत कि उसने मेरे जिस्म का पूरा बोझ संभाल लिया था। मैं उन जालों से लटक कर बेबस हो गया। जितने हाथ पांव चलाए उतना ही ये जाले मुझसे लिपटते चले गए और फिर ये कैफियत हो गई कि मैं जुम्बिश भी नहीं कर सकता था। हाँ, अलबत्ता बुढ़िया चरण मुझे नजर आ रहा था। वो उसी तरह पांव फैलाए मुझसे बेताल्लुक बैठा हुआ था। ये घिनौने लैसदार जाले छत से लेकर जमीन तक फैले हुए थे और बेरंग होने की वजह से मैंने उन्हें नहीं देखा था। और फिर अचानक उन जालों पर कोई शय मुतहर्रिक नजर आई। उस तहरीक से मेरा बदन भी जालों में लिपटा हिल रहा था। ओह, ये मकड़ियां थीं, 10-11 मकड़ियां जो उन जालों पर नमूदार हुई थीं। अपनी पीली बदनुमा आंखों से मुझे घूरती हुई, मुख्तलिफ सिमतों से चलती हुई मेरी सिमत बढ़ रही थी। उनका हजम कोई एक बालिश्त का होगा। मैं उनके पूरे जिस्म को देख सकता था। बुढ़िया चरण ने कहा, ये हमारे बेर हैं, हमारी हिफाजत करते हैं। हम जाग रहे हों या सो रहे हों, ये हमारे लिए जागते रहते हैं। तू ऐसा कभी मत सोचना, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा,
तेरा नुकसान हो जाएगा। अगर हाथी भी मेरी तरफ बढ़े तो ये जाले उसे लपेट लें और वो हिल ना पाए, और ये हमरे बेर उसे आंख झपकते चट कर जाएं। ये काला जादू है बालक, कोई बच्चों का खेल नहीं। मगर क्या करूं, तेरे भाग ही खराब हैं। धर्म धर्म की रट लगाए हुए है। अरे मूर्ख, शक्ति ही असल धर्म है। माया शक्ति हो या काया शक्ति, इसके बिना कुछ नहीं होता। क्या मिलेगा तुझे धर्म का मान रख के? हमारा ज्ञान ही महान है। चांद खान पर तेरा जादू क्यों ना चला? उनका कुछ क्यों ना बिगाड़ लिया तूने? उस ताबीज के पास जाते हुए तेरी जान क्यों निकलती थी भूरिया चरण? मैंने तंजिया लहजे में कहा और वो मकरू हंसी हंस पड़ा। अरे वो कहाँ जीता है, 60-70 और ले मरा अपने साथ। मुझे उस मजार पर जाने दे, फिर देखता हूँ तेरी शक्ति को। खतरनाक रास्ते बंद करना भी अक्लमंदी है, और अकल भी एक शक्ति होती है बावले। अब भी मान ले, मेरा छोटा सा काम है, बहुत छोटा सा। उसके बदले तुझे जो कुछ मिलेगा तू सोच भी नहीं सकता। भागन द्वार पहुंचा दे मुझे बस एक बार। एक यही भावना है मन में, बदले में बता दे क्या चाहिए। जीवन भर का सुख, शांति, धन, दौलत के ढेर, संसार झुका दूंगा तेरे चरणों में। जो मांगेगा दूंगा, बोल के तो देख। भूरिया चरण, इतना कुछ है तेरे कब्जे में? इससे भी ज्यादा बालक, और उससे भी ज्यादा। भूरिया चरण ने जीवन भर किया क्या है? सारी जिंदगी ज्ञान लेने में बिताई है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के चरणों की धूल फांकी है। और ये कहकर भूरिया चरण किसी खुशाइंद ख्याल में खो गया और फिर चौंक कर बोला, अरे हटो 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 इसके पास से। आ बच्चा, नीचे उतर आ। और अचानक मैं जाले की गिरफ्त से आजाद हो गया। मकड़ियां वापस चली गई थीं। मगर अब समय आ गया है। तेरे कब्जे में, और तू सीढ़ियां चढ़कर पीर भागन के मजार तक नहीं जा सकता। उसके लिए तुझे किसी और का सहारा चाहिए। ये तेरे सोचने की बात नहीं है। भूरिया चरण, तेरा इल्म गंदा है, सिफली है, नापायदार है, और वो एक पाक बुजुर्ग का मजार है। मैं नहीं जानता कि तू वहां क्यों जाना चाहता है, लेकिन एक बात जरूर जानता हूं, तेरा नापाक वजूद उस पाक जगह नहीं जाना चाहिए, और कम से कम मैं उसका जरिया नहीं बनूंगा। हम मुकद्दस जगहों का एहतराम अपनी जिंदगी से ज्यादा करते हैं। ये सुनते ही भूरिया चरण तैश के आलम में खड़ा हो गया। कुत्ते की पूंछ, अरे तेरी टेढ़ तो हम ऐसे निकालेंगे कि याद रखेगा। जा, मर जा, भाग जा यहाँ से। अपनी जिद के मजे चखेगा तू। ठीक होगा अब तेरे साथ, तू देखना। अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा, मैंने कहा, और भूरिया चरण दंदनाता हुआ खुद ही वहां से निकल गया। मेरे लिए वहां रुकना बेकार था, चुनाचे मैं भी मकान से बाहर निकल आया। मेरा दिमाग सनसना रहा था, ख्यालात मुंतशिर थे, कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। ख्यालात में डूबा जा रहा था कि रास्ते में शकुंता नजर आई। कॉलेज की यूनिफॉर्म में थी, वो मुझे नहीं देख पाई थी। पता नहीं कहां से आ रही थी, हो सकता है तालीम हासिल करती हो। मैं उसे नजरअंदाज करता हुआ घर वापस आ गया। मेरे पांव खुद ब खुद मुझे यहां ले आए थे, क्योंकि अब और कोई ठिकाना था ही नहीं। इसके बाद वही शाम, वही मामूलात। मेहमानों के लिए फूलों के हार लेने निकला था कि तमाशबीनों में से एक सूरत नजर आई और सारी जान आंखों में खिंच आई। ओह, क्या ये मामू रियाज ही हैं? सहर, जादू और पुरस्कार कुव्वतों की इन दास्तानों का अगला हौलनाक मोड़ क्या होगा? काला जादू का बकिया हिस्सा और मजीद नॉवेल सुनने के लिए अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।